Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm fine. What is your name? My name is Dan. Oh, what's your father's name? Sadat. What? Okay. In which class do you read? Fourth. How old are you? Ninth. Okay. In which school do you read? Ikram Ali Public School. Okay. But that question is very basic. Very basic questions. Yeah. Okay. So, which type of questions do you want to? What do you want to me to ask? You can ask any question you want. Okay. Alright. What is your hobby instead of study? I like cybersecurity and hacking. I love it. Okay, you love cybersecurity. Okay, what do you know about the computer systems? Like I know about all pushing brute force that you can get passwords to computers, databases, servers. Then here's pushing. No. This is about cybersecurity. I'm talking about the machine. What is the computer? Tell us about the computer. What is a computer? A computer is a machine that basically invented for calculation, but it evolved and become a basic need for modern life. Like here I have my friend that I start hacking with. Okay, what's your friend name? Lappy. Lappy. Okay, what are the specifications of this Lappy? Like it can hack things. It's very easy. It has many tools that I write in Python and many other languages that works. You are talking about Python. What is Python? Python is a programming language. Okay, you know the Python. You know how to write Python code. Yeah, it's a bit of calculation and that's it. Okay. Where you learn Python? From where you learn? I learned all the programming language like JavaScript, Java, Python, C++, C language, Go language, Shell from dark web. Right? Okay, what is dark web? Dark web is an illegal website. Dark web is an illegal network that is made by USA in 2015 for communication with other countries safely and anonymously. And now it's evolved and it become the house of illegal stuff. Like you can do anything illegal with this. Like you can learn non-ethical hacking, learn by missile, drugs, guns, human trafficking, human flesh, torture, missiles, bombs, guns, submachine gun, handguns, and all the illegal things you could imagine. Okay, so you can say that dark web is only for illegal activities? Like it was not for illegal activities, but it evolved and get for illegal. Okay, you can say that the dark web is a safer communication channel. Yeah, and do you know the dark web has become the homeland of all hackers? Okay, and tell us about cybersecurity experience do you have? I have 5 years of experience in hacking. Okay, which type of experience? Like, do you hack any system? Do you hack Like any? I hacked databases, I hacked computers, I hacked phones, I hacked servers, I hacked cameras, and I hacked many other things. Tell us what is the process of hacking the IP cameras? IP cameras. I made a tool that is free on my website called GitHub that I created for all the hackers. Stop here. What's your website? Please tell the audience the your website address, web address. Alright, wait a minute. When I was starting to learn hacking, I made a website to improve every other hacker skill to make the hacking colony more powerful, and no one can even touch them. So I created this, and I write many tools, and I give free tools on this website like brute force attack tool, pushing tools, and many other that I'm going to explain to you, but it's long very. Okay, so you have developed the tools. Yeah, I developed two tools, and I let other hackers to develop more tools to start. Is your website is live now for all the audience?
It's Yeah, live. you It's can live. access it. It's called GitHub. Just search GitHub and you got it. Create an account, make tools, get tools, be powerful and be Okay. strong. Okay. So you can say that you provide people access to free softwares, free tools on your website. And even though even the governments of the governments of many countries, they didn't even know about it, that we are selling we are giving illegal tools to hackers. And do you know one thing? Some hackers, right, don't use it for illegal activities. Now that can manipulate government to know that this is only for our ethical hackers, cause this is public. Anyone is not a hacker, or a white hacker, or a black hacker, gray hacker, any type of hacker, any type of people can use it. It's Okay. pretty easy. Just Okay. one click and boom, you're done. Okay. Now we will talk in Urdu, so we have audience in Urdu, so they can understand what we are talking about. Okay. अब हम उर्दू में बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती. Okay. ओके. अब आप बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं या जो बड़े हैं, जो चीज़ हैकिंग सीखना चाहते हैं या जो साइबर सिक्योरिटी की तरफ आना चाहते हैं, आप उनको क्या कहेंगे कि वो कैसे इसकी तरफ आएं, कैसे सीखें? इंटरेस्ट बनाओ. अगर आपको पहले से इन चीजों पे इंटरेस्ट है तो जोर डालो, बोलो कि आपने इसे सीखना ही सीखना है, पूरी तरीके से सीखना है, लाजमी सीखना है. मतलब आप इसे मास्टर, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप इसे मास्टर कर लोगे. मास्टर मतलब बहुत अच्छे से इसे बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से सीख लोगे. आप क्या मैसेज देंगे उन्हें कि वो आया यूट्यूब से सीखें या पेड कोर्सेज लें किसी से और फिर सीखें? वो क्या तरीकाकार होगा जो कि आसान हो सब स्टूडेंट्स के लिए? देखो, अगर आपने पेड कोर्सेज लेना है या कोई कोर्सेज लेना है, बस ढूंढो. मैंने तो डार्क वेब से किया था, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता आपको जाने पे, क्योंकि इतना इलीगल है. और कुछ लोग ना वहाँ पे ड्रग्स, गन्स और ये इलीगल चीजें बेचते ही हैं. तो फिर मैं नहीं, अगर हम पॉजिटिव यूज करें उसका तो उसमें आपको काम की चीजें मिलेंगी. डार्क वेब डिपेंड ऑन यू. अगर आप लीगल यूज के लिए आए तो फिर ठीक है, आप ये आपके लिए लीगल हो गया. इलीगल यूज के लिए आए तो डार्क वेब आपके लिए इलीगल हो गया. ओके. तो आप ये बताएं कि अब जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं वो बुक्स में लगे रहते हैं या घर आके, अगर आपके पास एक इंटरनेट और कोई सी भी डिवाइस है आपके घर में, तो फिर आप बिंदास सीखे, सब कुछ सीखे. इंटरनेट पे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किताबों में नहीं पढ़ी. ओके. अब हमें बताएं आपके क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सिस्टम्स हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं कि उन्हें हैक नहीं किया जा सकता, या वो बहुत इजी है हैक के लिए? बहुत इजी है. कॉज पाकिस्तान सिर्फ अपनी मिलिट्री के ऊपर ही पैसा लगाती है. ना ही उसने अपने डेटा के बारे में सोचा, ना ही उसने अपनी एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचा. उसे पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए अपना एजुकेशन सिस्टम, ताकि यहाँ के लोग बड़े बड़े काम कर सकें, दूसरी कंट्रीज में जा सके, बिजनेसमैन बन सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकें. तो नहीं, अब मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के जो सिस्टम्स हैं, लाइक उनके बैंक्स हैं, स्पेशली बैंक्स. टू इजी. ओके. आपने कभी कोई बैंक हैक किया है? मैंने एक हैक तो किया है. एक बैंक HBL की एक ब्रांच थी. Okay. मैंने एक वर्म बनाया था. उस वर्म को मैंने HBL के एक ब्रांच में इंजेक्ट किया, और फिर वो वर्म उस HBL की ब्रांच के मेन कंप्यूटर से होते उनके डेटाबेस के अंदर चला गया. और फिर वहाँ से आगे से तो लगता है कि हाँ एकदम सही चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में सारा काम हो रहा है, सारा कुछ मैं डेटा देख रहा हूँ, सारी चीज मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ. तो आप उनको पता नहीं लगा कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है? हाँ, क्योंकि वो वर्ड बैकग्राउंड में वर्क करते हैं. आगे से देखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी. लगेगा इतना सही चल रहा है, तगड़ा चल रहा है, लेकिन अब पीछे से काम हो रहा है सारा. तो वो सिस्टम को अफेक्ट करता है, लाइक उनके बैंक अकाउंट को नुकसान पहुंचा सकता है. मैंने जो वर्म डिजाइन किया था वो मेरे को
सारा पूरा कंट्रोल ले लेता है, क्योंकि वो वर्म उस वर्म के अंदर एक पेलोड थी जिसे मैंने उस वर्म की मदद से उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया उस डेटाबेस के अंदर। और पेलोड जो काम करती है ना, वो पूरा एक्सेस दे देती है उस पेलोड के क्रिएटर को उस विक्टिम के कंप्यूटर सर्वर या कोई सी भी डिवाइस के डेटा को यूज करने की, या उस डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल करने की। ओके, अब मुझे ये बताएं, आपके दुनिया का अमीर तरीन बंदा कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क बेसिकली करता क्या है? देखो, उसका मेन सपना है कि जाए दूसरे प्लैनेट्स में कॉलोनी बचाए। पता नहीं उसका क्या मजा आ रहा है, ये अच्छी है ना। ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी कभी आपने सोचा है इसे क्रिप्टो करेंसी क्यों बोलते हैं? क्रिप्टो इनक्रप्टेड का मतलब होता है फुली एनोनिमाइज। इसे यूज करते वक्त नहीं आपको गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, नहीं कोई ट्रैक कर सकता है। ओके, तो अभी आप की क्रिप्टो करेंसी की तरफ, अच्छा, वन क्वेश्चन इज दिस के क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है प्लेटफॉर्म उसको हैक कर सकें? आप कर सकते हैं? कोई एक्सचेंज आप हैक कर सकते हैं? ट्राई किया आपने कभी? हाँ, मैं एक वायरस बना सकता हूँ जिसकी मदद से मैं मलेशियस स्क्रिप्ट्स उसके अंदर रन कर सकता हूँ। फिर उसकी मदद से फिर मैं ना एक पेलोड उसके अंदर बनाऊंगा, और फिर वायरस वो पेलोड की स्क्रिप्ट को जैसे ही रन करेगा उस पूरे सिस्टम को मैं हथिया लूंगा, हाईजैक कर लूंगा। इसका मतलब अब वो पूरी वेबसाइट मेरी हो गई। ओके, ग्रेट। ओके, तो आप या तो फिर वो पूरा एप्लीकेशन या कोई सा भी। ओके, आप जो हैं अपनी एज के बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो पढ़ाई कैसे करें, कैसे स्किल सीखें कि वो अगर आपके पास इंटरनेट है और एक डिवाइस है तो उससे आप इंटरनेट से सीखें। उधर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पाकिस्तान के अंदर की मिलने वाली किताबों में नहीं। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक इंटरनेट राउटर ले भी सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से जो तालीम मिलती है बच्चों को वो किताबों से नहीं मिल सकती। ओके, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को क्या उनकी रूटीन रखें, क्या रूटीन रखें? मेरे को आज तक कोई होमवर्क नहीं कराया और आज तक कोई प्रेशर नहीं डाला। अपने बच्चों को पहले थोड़ी सी खुली छूट दें, फिर जैसे ही वो थोड़े ऐसे मैच्योर होने लगे तो फिर उन्हें थोड़ा एडजस्ट करना शुरू कर दें। और हाँ, अगर उन्हें सीखना है कुछ मेरे जैसा बनना है तो फिर आप उन्हें ना कुछ ज़्यादा जल्दी से आला तालीम दे दें। मेरी माँ ने मेरे को 3 साल का था कंप्यूटर पकड़ा दिया था और अब देखिए मैं मास्टर कर चुका हूँ हैकिंग। ऐसे ही आपका बच्चा एक पूरी वेबसाइट खोल सकता है, एक कंपनी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है जिस चीज में उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन आजकल के बच्चों को तो पोएम्स और कार्टून से फुर्सत नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे उनसे दूर करें उसको? इस एंटरटेनमेंट को आप कभी बाद में इस्तेमाल कर लेना, थोड़ा टाइम। ज्यादा टाइम ना आप किसी इंफॉर्मेटिव चीज पे लगाएं। जब मैं छोटा था ना, मेरे को इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने बड़ा मजा आता था। इवन ऑल ना मैं गूगल पे जाके सर्च करता था चीजें। और हाँ, मैं ना जब 5 साल का हुआ तो मैंने हैकिंग सीखी। और आपके बच्चे का जो मन करता है ना उसे उस फील्ड में डालें। मतलब उसका मन करता है मेरे को इंजीनियर बनना है तो उस फील्ड में, उस इन्वायरमेंट में उसे डालें, ताकि वो बच्चा अच्छे से एडजस्ट हो और आगे चल के प्रोफेशनल और एक बेहतरीन इंजीनियर बन पाए। लेकिन एक बच्चे को कैसे पता लगेगा उसको किस तरफ इंटरेस्ट है, जबकि जब उसे इंटरनेट दे दोगे और फिर उसे इंफॉर्मेटिव चीजें दिखाओगे तो फिर उसे आप बहुत सारी चीजों का पता लगेगा, जैसे साइबर सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, ये सब। और जैसे जैसे उसके बारे में वो जानेगा उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, अब आप एक मैसेज देंगे हमारी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि उन्हें छोटे बच्चों के लिए क्या एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो बुक्स के साथ साथ जो आपकी स्किल्स हैं वो सीख सकें? क्या आपको नजर आ रहा है? पहले मैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के बात करता हूँ, जो आप ये किताबें यूज करना है इसे इम्प्रूव करें। बाहर की नॉलेजेस है, सारी दुनिया की नॉलेजेस है, ऐसी नॉलेज जो कि आजकल जरूरी है उन्हें बुक्स में डालें। क्योंकि आजकल की जो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स है ये ज्यादातर पैसा अपनी मिलिट्री में खर्च करते हैं, और इवन इंडिया भी ऐसा ही करता है, क्योंकि उन लोगों को पढ़ा ही नहीं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इन दोनों को नहीं पढ़ी, इन दोनों को कोई समझाए। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें, इतना इम्प्रूव करें कि आजकल का गांव वाला बच्चा भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा सके। और अगर ऐसा हो गया तो आपकी जो ये कंट्री है वो तो ऊपर पहुंचेगी, साथ साथ बच्चों का भी फायदा होगा और इस जगह इसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। और ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी कि जब लोगों को इधर से छोड़ के दूसरी कंट्री जाना पड़ेगा। ओके, अब थोड़ी सी बात इस्लाम पे कर लेते हैं। इस्लाम के बारे में आप क्या जानते हैं? देखें, इस्लाम के बारे में मेरे को हाफ नॉलेज है। ओके, हाफ नॉलेज है। देखें, अब आप मुझे ये बताएं कि अपनी स्किल के साथ साथ आपको इस्लाम मतलब आप ये हैकिंग करते हैं, आप इथिकल हैकिंग करते हैं, व्हाट्सोएवर आप साइबर सिक्योरिटी में करते हैं काम, तो इसमें आप इस्लाम को कैसे आप कर सकते हैं यूज़ कि आप इस्लाम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलाएं? कैसे आपको मैं इसका कभी भी हराम का पैसा नहीं खाता। कोई अगर मुझे पैसा दे एक हराम काम करने का, तो उस हराम काम करने का जो पैसा मिलेगा वो हराम नहीं हो जाएगा। इसी वजह से ये बुरा है कि आप किसी से पैसा लेके कोई हराम काम करे। अगर वो कोई हलाल काम करा रहा है तो ठीक है, ओके, लेकिन पैसा अगर आप नहीं लेंगे उससे और वो हलाल काम करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवाब होगा। हलाल और हराम की तमीज़ आपको हर काम में करनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या असली जिंदगी, इन दोनों के अंदर आपको हराम या हलाल की देखनी चाहिए। इसके लिए आपको कुरान से मदद लेनी होगी। हाँ, कुरान रख लो अपने पास, कुरान को पढ़ें सुबह और शाम। और अगर आप कुरान की लैंग्वेज से अगर आप कोई भी अगर आप इंग्लिश जानते हैं, ये सब जानते हैं, अरबिक नहीं जानते और तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपनी लैंग्वेज में कुरान ले लें, क्योंकि आजकल कोरियन में बिकते हैं, इंग्लिश में बिकते हैं, उर्दू में बिकते हैं, ऐसे बिकते हैं। या तो फिर अगर आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते तो अगर आपके पास कोई सेल फोन है तो गूगल लेंस का इस्तेमाल करें, जिससे आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। ओके, तो फाइनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मज़ीद एक मैसेज आप ये बताएं कि उन्हें अपनी जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट लेवल पे अपने मुल्क के लिए, वो किस जगह पे आपको नज़र आता है कि वीक है पाकिस्तान, जहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो अपना तवज्जो देने की ज़रूरत है? जनरली सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो कि हर एक बंदा जानता है, एजुकेशन सिस्टम इतना पुराना हो चुका है ना, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग स्टोन एज की जो बातें सुनी करें। ऐसा लग रहा है हम लोग आदिवासी हैं। इम्प्रूव करो, जैसी जैसी बाहर नॉलेज आती जा रही है, जैसी जैसी हमें डिस्कवरी कर रहे हैं, उस हिसाब से नॉलेज दी जाए बच्चों को, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। इवन इस देश की इस कंट्री की इकोनॉमी बनेगी और हमारा मुल्क सबसे ऊपर जाएगा। ओके, आप ये कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम को, और एक एग्जांपल दूं, लाइक यूएस इतना ज्यादा बड़ा क्यों है, इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि उसकी एजुकेशन सिस्टम बड़ी है। ओके, ये तो एजुकेशन हो गई उन लोगों के लिए जो कि एजुकेशन के अंदर मौजूद हैं या जो बच्चे अभी एजुकेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। अभी गवर्नमेंट लेवल पे जो उनकी स्ट्रेटजीज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ एजुकेशन के अलावा। अपनी कंट्री को मजबूत बनाने के लिए, अपनी कंट्री को नंबर 1 पे लाने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे क्या इकदाम होने चाहिए? इस बारे में आपका जहन क्या कहता है? कंट्री के जो हालात है ना, उन्हें कंट्रोल करें। देखो, बिल ये सब महंगाई, इन्हें एक बार एडजस्ट कर लेंगे तो बाकी लोगों को दूसरी कंट्री में भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे इस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी उतना ये टॉप से नीचे आती रहेगी। पहले देखो, जब कायद थे इतनी जबरदस्त चलती थी ये कंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेस्ट चलती थी, टॉप कंट्री थी। लेकिन अब देखो क्या हाल हो चुके हैं इस कंट्री के, एक बिल देने के पैसे नहीं बचे। ओके, और ऊपर से हम लोग बिल भी दें और लाइट 1 घंटे आती है, 1 घंटे जाती है, हम क्या करें? ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इसकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए आप रिसोर्सेज पैदा करें, जो कि लोग बाहर जा रहे हैं वो अंदर ही रहें और अपने मुल्क के लिए सर्व करें। हाँ, और उन्हें हायर जॉब्स दें, ऑफर दें, क्योंकि फिर ना अब लोग मजदूरी तो ज्यादा, सारे लोग मजदूरी तो थोड़ी कर सकते हैं, तो फिर अगर वो हायर जॉब करेंगे तो उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस कंट्री से बाहर जाने की हायर जॉब्स के लिए। ओके, चलें, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।